Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be starting with our biology classes for NDA CDS 1 2025. Okay, so this is the class 1 of biology and we will be discussing human body. Right, so let's get started with the class. Alright, so yes, this is the schedule for today. So the classes starts from 8 a.m. onwards. Okay. So 8 a.m. we have this daily current affairs class, 9 a.m. पे daily defense updates है. Then NDA की जो class है वो start होती है 11:30 a.m. से for GK, then 1 p.m. for biology, 4 p.m. for maths. Okay, similarly CDS 1 starts from 11:30 a.m. for GK, 1 p.m. for biology and 2:30 for maths. Okay, and for FCAT it is 10 a.m. reasoning, 2:30 p.m. maths and 4 p.m. static GK. Right, so please do join the respective classes on time. So the topics, the subtopics that we are including today is the digestive and the respiratory system. Okay. So as we all know that human body is such a complex machine. Okay, we have so many different systems in our body. ठीक है, जैसे digestive system हो गया, respiratory system है, excretory system है, ठीक है, circulatory system, nervous system, endocrine. Okay, and each of these systems have different functions, different role. Okay, and they together work in coordination and this is how the human body is being made. Okay, तो वैसे तो ये ह्यूमन बॉडी जो टॉपिक है ये हम 4 पार्ट्स में हम कवर करेंगे. ओके, एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ ह्यूमन बॉडी. So we will be discussing 2 systems today. One is the digestive system and other is the respiratory system. Okay. Now let's talk about the digestive system. Okay. तो digestive system जो है इसका function क्या है? Okay, and why it is needed in first place. हमें digestive system की requirement क्यों है? जैसे food available है, why can't we have in that form? The reason of this is food जो है वो complex form में available है. Okay, और उस complex form में the human body cannot absorb it. ठीक है, so the human body cannot absorb the complex food and that's why the digestive system will going to come into play. Okay, तो यही main role है digestive system का कि जो भी complex nutrient है उसको simple absorbable form में convert करना. Okay, so that it can be easily absorbed by and yes, it could be converted to energy for the growth and cell repair. Okay, तो सबसे पहली चीज तो हमें समझना है why do we need to have food? We need to have food for our growth, for our cell repair, etc. Okay, for energy, right? And what is the function of digestive system? जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है उसको सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करके सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये किसका फंक्शन है? डाइजेस्टिव सिस्टम का है और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. ठीक है, इसमें देखिए कुछ मेन फंक्शन है जैसे हो गया इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन. ठीक है, तो जो ये 4 प्रोसेसेस हैं इनको भी समझ लेते हैं. So alongside you can see the diagram. So this is the alimentary canal that starts from the mouth. Okay, mouth से start होगा and it will going to end at the anus. Okay, ये पूरा alimentary canal है. Okay, right. तो जो पहला आपको यहाँ पे जो process दिख रहा है that is ingestion. It means taking in of the food. Okay, taking in of the food is known as ingestion. Okay, तो mouth में when we take the food inside the mouth, that is ingestion. डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसको हम डाइजेशन कहते हैं. ओके, देन अब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो जो सिंपल फॉर्म है, ठीक है, वो अब डाइजेस्ट हो चुका है, लाइक जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल में कन्वर्ट हो गया है, तो डाइजेशन का प्रोसेस हो गया. नाउ दैट नीड्स टू बी अब्जॉर्ब्ड. ओके, इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी, इन ऑर्डर फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, तो अब अब्जॉर्प्शन होगा. एंड फाइनली द एलिमिनेशन. एलिमिनेशन में मतलब क्या हुआ कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका रिमूवल होना भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो यस, द वेस्ट प्रोडक्ट विल बी एलिमिनेटेड. ओके, सो यस, इट विल बी एलिमिनेटेड थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. सो दीज आर द 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है,
right? Now we will going to discuss the alimentary canal or the different digestive organs in detail. ठीक है, देखिए जब भी आप कोई भी सिस्टम पढ़ें ह्यूमन बॉडी में, मेक श्योर कि आपको ऑर्गन्स पता हो उन सिस्टम के, ओके जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, उनके फंक्शन, मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लाइक हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इट अकर्स, ठीक है, तो वो मैकेनिज्म कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, एंड ऑल्सो द डिजीजेज और डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ इट, ओके। सो मेक श्योर व्हेन यू आर स्टडिंग एनी सिस्टम आप ऑर्गन पढ़िए, उन ऑर्गन के फंक्शंस पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड देन व्हाट एल्स इज इंपॉर्टेंट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड, क्या प्रोसेस है डाइजेशन का, क्या प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये आपको समझना है। And finally the disorder that is associated with each of these systems, okay। अब if you see the diagram here, आपको यहाँ पे दिख रहा है that this is the like this is the mouth, okay, mouth से ही food pipe जाता है, that is the esophagus or the food pipe, ये जो आपको दिख रहा है this is the food pipe और इसी को हम esophagus कहते हैं, okay। Now it goes into this stomach that we call it as like ये जो आपको दिख रहा है this is the stomach, okay, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया है, ओके, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, दीज आर द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद सीकम आता है, कोलन है, रेक्टम है, तो ये किसका पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, राइट। एंड फाइनली द एनस, राइट। एंड हियर यू कैन सी कि यहाँ पे लिवर, ओके, गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियाज है, सो दे आर नोन एज द एक्सेसरी ऑर्गन्स, ओके। तो ये जो है ये एक्सेसरी ऑर्गन्स है, वाई, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बट दे आर नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस में इनकी ज़रूरत पड़ती है बिकॉज येस द सिक्रीशंस दैट दे रिलीज दे हेल्प इन डाइजेशन, ओके। तो अभी हमें ऑर्गन समझ आ गया, ओके। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फंक्शन, ओके। तो देखिए ये जो इंजेशन है ये नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे भी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेंशन है, ओके, दैट इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ इज इंजेशन, ओके। केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन, दो टाइप के डाइजेशन होते हैं। अगर इफ द डाइजेशन और इफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज ब्रेकिंग इनटू द सिंपलर फॉर्म, ओके, बाय क्रशिंग और चूइंग, ओके, इन द माउथ, सो दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन, ओके। सो चूइंग इन द माउथ, चर्निंग इन द स्टमक, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन में हमेशा एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स, ये हम किससे कहते हैं, ये हम केमिकल डाइजेशन को कहते हैं, जैसे अमाइलेज है, जैसे पेप्सिन है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन की बात करें तो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब प्राइमरली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। सो न्यूट्रिएंट जो अब्जॉर्ब होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन उसको हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। एलिमिनेशन इज वेस्ट प्रोडक्ट एक्सपेल्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दे कैन अक्यूमुलेट एंड कॉज सो मेनी डिजीजेस, ओके। सो वी डू नॉट वांट दैट फॉर श्योर, तो इसीलिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव होना चाहिए और वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट ऑर्गन्स, और देखिए उनके फंक्शन भी मेंशन है, ओके। सो वी कैन डिस्कस दिस, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है माउथ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ओके, राइट। क्यों, किसका डाइजेशन होता है माउथ में, माउथ में होता है स्टार्च का डाइजेशन, ओके, बिकॉज माउथ में सलाइवा होता है, आपको पता है, ओके। एंड सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको अमाइलेज दिखेगा इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में ये हेल्प करेगा, ओके। एंड स्टार्च इज वन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो इसीलिए जो माउथ है वहाँ पे सलाइवा है एंड इट विल गोइंग टू हैव द सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कई बार पूछा भी जा चुका है कि डाइजेशन का स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो ये माउथ में होता है स्टार्च के डाइजेशन से, ओके। फिर ईसोफेगस, इट इज द फूड पाइप, इट विल गोइंग टू कंडक्ट द फूड टू द स्टमक, ओके।
देन देयर इज स्टमक जो कि इट विल गोइंग टू स्टोर एंड ब्रेक डाउन द फूड विथ एसिड एंड एंजाइम्स. ओके, तो देखिए स्टमक में आपको पता है कि HCl होता है. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. हाउ, लेट्स डिस्कस दैट. देखिए होता क्या है कि स्टमक में पेप्सिनोजेन नाम का एक एंजाइम होता है. ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो HCl का काम होता है कि इसको एक्टिव करना और पेप्सिन में कन्वर्ट करना इस एंजाइम को. ठीक है, अब फाइनली प्रोटीन के डाइजेशन होता है स्टमक में, प्रोटीन पेप्टाइड बनता है. बट यहाँ पे कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? द सेम पेप्सिन. ठीक है, द सेम पेप्सिन. तो आप देखिए कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा. स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है. ओके, and it like pepsin will going to help in the digestion of protein to that of the peptides. okay, उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो पेप्सिनोजेन है, जो इनएक्टिव एंजाइम है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिव फॉर्म में करने के लिए, पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl इज इम्पॉर्टेंट. ओके, राइट, HCl इज विल गोइंग टू कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन. ओके, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया है थ्रू दी HCl. इसीलिए HCl इंपॉर्टेंट है. अगर HCl ना हो तो क्या क्या हो सकता है? इफ HCl इज नॉट देयर, आप देख सकते हैं पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा. और अगर पेप्सिन नहीं होगा तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में भी नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है. प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में नहीं हो सकता. ओके, इसीलिए HCl का ये इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है. ओके, देन वी कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है. ओके, दे आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे आर अब्सॉर्ब्ड हियर. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है एंड दे फॉर्म वेस्ट इनटू फीशीज. ओके, लिवर विल गोइंग टू प्रोड्यूस बाइल टू ब्रेक डाउन फैट. ओके, लिवर क्या करता है? बाइल को प्रोड्यूस करता है टू ब्रेक डाउन फैट्स. गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड रिलीजेस बाइल फॉर फैट डाइजेशन. गॉल ब्लैडर विल गोइंग टू स्टोर एंड रिलीज बाइल. गॉल ब्लैडर का काम होता है जो बाइल है, जिसे हम पित्त कहते हैं हिंदी में, ओके, उसको स्टोर करना और रिलीज करना फैट डाइजेशन के लिए. तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि फैट के डाइजेशन के लिए like which of these is important. So bile is important. Bile is released or it is like प्रोड्यूस तो लिवर करता है बाइल को, ओके, लेकिन ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर इज द पित्त की थैली जिसे हम कहते हैं हिंदी में. ठीक है, तो यहाँ पे जो पित्त है, जो बाइल है, वो स्टोर होता है. ओके, उसके बाद पैनक्रियाज पे आते हैं. देखिए पैनक्रियाज में भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन के लिए, जैसे अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया. ओके, रेक्टम क्या होता है? इट स्टोर्स द फिशीज बिफोर एलिमिनेशन. सो बिफोर रिमूवल रेक्टम फिशीज को स्टोर करता है. ओके, एनस इज द फाइनल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर वेस्ट रिमूवल. सो एनस जो है ये फाइनल ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर द वेस्ट रिमूवल. ओके, so yes, this is the digestive system and different organs associated with it along with their function. okay, ये important है. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होना है. सो अमाइलेज विल गोइंग टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ट्रिप्सिन जो है, जो कि पैनक्रियाज से रिलीज होगा, और पेप्सिन जो है, जो स्टमक में होगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा. ठीक है, फैट के डाइजेशन के लिए, फैट के डाइजेशन के लिए बाइल इंपॉर्टेंट है. बाइल विल गोइंग टू हेल्प इन दी डाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑल्सो लाइपेज, जो कि पैनक्रियाज सिक्रीट करता है. ठीक है, पैनक्रियाज लाइपेज सिक्रीट करेगा और लिवर बाइल सिक्रीट करता है, और दोनों ही लाइपेज एंड बाइल दे आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फैट. दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स. okay, which of the following helps in digestion of fat? So it is the bile, it is the lipase, right? okay, then moving ahead to the absorption of nutrient. तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज के फॉर्म में अब्जॉर्ब होगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जो प्रोटीन है इट इज अब्जॉर्ब्ड एज अमीनो एसिड्स. जो फैट है इट इज अब्जॉर्ब्ड एज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड देन टू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, विटामिन और मिनरल्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाते हैं. राइट, ओके, ऑल राइट. नाउ देन वी मूव टू दिस. यस, यहाँ पे देखिए डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं. ये टेबल है, यू कैन गो थ्रू इट. ओके, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि माउथ में सलाइवरी अमाइलेज होता है, इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज. स्टमक में पेप्सिन होता है, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू डाइपेप्टाइड्स.
पैनक्रियाज में अमाइलेज होता है, इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। ट्रिप्सिन होता है, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू डाइपेप्टाइड्स। और लाइपेज होता है, इट ब्रेक्स डाउन दी लिपिड्स। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेस और पेप्टिडेज होता है। ओके, सो यस, माल्टोज जो है इट विल गोइंग टू ब्रेक माल्टोज इनटू ग्लूकोज, sucrase will going to break sucrose into glucose, lactase will going to break lactose into glucose, and peptidase will going to break dipeptides into amino acids. Okay, right? Okay, now this is one of the very important part. यहाँ आपको pH पूछा जा सकता है कि जो digestive tract है उसका pH कैसा होता है. Okay, so can you see कि जो red portion है that is only limited to stomach and red is defining the acidic part. ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टमक है इसका pH एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl इन इट. ओके, तो जो ओरल कैविटी है इसका pH होता है 6.8 to 7.5. ओके, स्टमक का देखिए एसिडिक होता है 1.5 to 2. देन ड्यूडेनम का होता है 5.6 to 8. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.2 to 7.5 एंड कोलन का 7.9 to 8.5. ओके, so yes, this is the pH of gastrointestinal tract. Okay, so you can go through it. Next is the digestive system. Okay, यहाँ पे देखिए digestive system में यहाँ पे जो next है that is the balanced diet. Okay, the next part of the digestive system is balanced diet here. तो balanced diet क्या होता है? It means that it contain adequate quantity of nutrient that we require in a day. ओके, तो आपको भी पता है एक अच्छी ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बीट कार्बोहाइड्रेट, बीट प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इनका एक स्पेसिफिक पोर्शन होना चाहिए इन आवर डेली डाइट एंड दैट इज द बैलेंस्ड डाइट. राइट, हैविंग ऑल ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स in proper ratio and proper order in which it is required by our body. Okay, तो बैलेंस डाइट में फैट भी होगा, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, विटामिन एंड मिनरल. ओके, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दी बैलेंस डाइट. किसी की भी अगर कमी हो जाए बीट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट और विटामिन, सो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी, इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, we do need to have a proper diet that is the balanced diet. Okay, now coming to the most important part of this topic, digestive system. आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आता है द विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. ओके, तो विटामिन के जो नेम है, ओके, द अदर नेम फॉर विटामिन, जैसे B1 को हम क्या कहते हैं, थियामीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन. ठीक है, राइट, एंड देन यू कैन सी विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं. एंड द डेफिशिएंसी डिजीज लाइक विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है. ओके, विटामिन ए की कमी से आयन स्किन डिजीज होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थैल्मिया, रप्चर ऑफ कॉर्निया. ओके, दीज कुड हैपन. ओके, तो ये सारी डिजीज ये विटामिन की डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट एट ऑल. आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टेबल से. ओके, तो आपको हर एक विटामिन का जो अदर नेम है वो याद होना चाहिए एंड देयर रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. ओके, राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. यू कैन गो थ्रू इट एंड प्लीज डू रिमेंबर ईच एंड एवरी पार्ट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन के का देखिए जो अदर नेम है वो है फिलोक्यूनोन और ये ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है. ओके, लाइक अगर इससे लाइक इट इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉट होने में इट विल गोइंग टू टेक टाइम. ओके, सो ब्लड क्लॉट नहीं होता अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है. ओके, तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो ब्लड क्लॉटिंग, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन. तो आपका आंसर होगा विटामिन के. ओके, ठीक है, उसके बाद चलिए डिसऑर्डर्स देख लेते हैं. तो गैस्ट्राइटिस होता है, स्टमक लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन, वहाँ इन्फेक्शन, स्वेलिंग हो गया है. पेप्टिक अल्सर इज द सोर इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक और ड्यूडेनम. कॉन्स्टिपेशन इज डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल. Diarrhea is frequent loose stools due to infection or improper absorption of food. Acid reflux is backflow of stomach acid into the esophagus
causing heartburn. Okay, तो acid reflux में क्या होता है, जो stomach की acid है it goes to the esophagus and that causes the heartburn. Okay, so yes, यहाँ पे हमारा digestive system complete होता है. We have discussed different organs. Okay, important organs of digestive system हमने समझा. Then we have talked about the mechanism involved. ठीक है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, क्या पीएच रहता है, बैलेंस डाइट क्या है, विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं. ठीक है, राइट. देन ऑर्गन के फंक्शन भी हमने समझे. ओके, एंड द लास्ट इज द डिसऑर्डर्स. ओके, सो लाइक बाय नाउ लाइक till here we have completed the digestive system. Okay, right. So yes, if you have any doubt you can please ask your doubt in the doubt board in the chat box. Right, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, द अदर टॉपिक फॉर टुडे. ओके, सो यस, अब देखिए जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं. ओके, आई होप डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रोल क्या है. ओके, तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वी कंज्यूम इट टू गेट द एनर्जी. ओके, सो यस, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है और जो ब्रीदिंग है दैट इज डिफरेंट प्रोसेस. ओके, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो वी थिंक कि रेस्पिरेशन इज सेम एज ब्रीदिंग, बट दोनों में डिफरेंस होता है. ओके, सो ब्रीदिंग क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सिंपली ब्रीदिंग. ये एक फिजिकल प्रोसेस है. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू सेल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बट एट सेल्यूलर लेवल. ओके, तो ये हो गया रेस्पिरेशन. ओके, अब देखिए रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, इट इज लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये गैस एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लाइक ऑक्सीजन के इनटेक के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपल्शन के लिए. Okay, so it include the airways, lungs and respiratory muscles. Okay, right. So yes, this is it. Now if we look at the like alongside figure, if you can see this diagram, तो ये respiratory system का part है. इसमें आप देख सकते हैं nasal cavity है, nose है, nasal cavity है. Okay, इसके बाद ये pharynx आता है, that is common to both the windpipe and the food pipe. Okay, right, pharynx एक common portion होता है that leads to the food pipe also, that leads to the windpipe also. Okay, उसके बाद देखिए epiglottis है. epiglottis actually cover होता है over the windpipe. Okay, so क्या होता है कि ये जो windpipe है and food pipe है, they are very like they are placed side by side, so there is a lot more chance, there is so much probability that when we eat food it might get stuck in the windpipe. ठीक है, वो windpipe में जा सकता है. So for that in order to prevent this from happening, there is a cover on the windpipe और उसको हम glottis, epiglottis कहते हैं. So glottis जो term है ये windpipe के लिए है, and since it is the cover of it is a flap or a cover for the trachea or for the windpipe for the glottis, तो इसीलिए हम इसको epiglottis कहते हैं. ओके, देन कम्स द लैरिंग्स जो कि साउंड बॉक्स है, और उसके बाद देखिए ट्रेकिया है जिसको हमने विंड पाइप बोला है. ओके, इसके बाद आते हैं ये ब्रोंकस. ठीक है, ट्रेकिया के बाद है ये ब्रोंकस. इसके बाद दीज फाइन लाइंस, कैन यू सी दीज फाइन स्ट्रक्चर्स, ये ब्रोंक्यूल्स हैं. ओके, एंड इट एंड्स इनटू द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में एंड हो रहे हैं इसको हम एल्वियोलाई कहते हैं. ओके, सो दे विल गोइंग टू एंड इनटू द एल्वियोलाई. ओके, so it include the airways, lungs and respiratory muscles. So oxygen is delivered to cells for cellular respiration and carbon dioxide is expelled as the waste product. Okay, so yes, वो जो जो food है that get oxidized in the presence of oxygen to liberate energy. Okay, तो जो digestive system ने हमने food को absorb किया, okay, that will going to be oxidized in the presence of oxygen and it will going to liberate energy. तो रेस्पिरेशन में हमेशा एनर्जी का लिबरेशन होता है, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है. ओके, देन देयर इज दिस डायफ्राम दैट इज गोइंग टू सेपरेट द thoracic region from the abdominal region. Okay, okay, now coming to this. Okay, ये nose है, nostril है, this is the nasal cavity. Okay,
ये फेरिंग्स है, दिस इज द ट्रेकिया जो विंड पाइप है, ठीक है। ये सी शेप्ड, इसमें इनकम्प्लीट सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है कुछ ऐसी, ठीक है। पूरी कंप्लीट पीछे तक नहीं होती, इट इज़ नॉट अ सर्कुलर रिंग बट सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है इन ऑर्डर टू गिव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टू ट्रेकिया, ठीक है, ताकि ट्रेकिया का एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, इसलिए यहाँ पे एक लाइक दिस सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, ओके। Then this is the bronchus, okay, like one is the bronchus, plural उसका bronchi होता है, okay। उसके बाद देखिए यहाँ पे bronchioles हैं, these are the bronchioles, okay। bronchioles के बाद it will going to end into the alveoli, ठीक है, ये alveoli में end होगा, okay। और इस this balloon like structure is known as the alveoli, right, okay। So yes, this is it. Right, and diaphragm will going to separate the chest, the thoracic cavity from the abdominal cavity, okay। Okay, now coming to the different organs और उनके function को समझते हैं। देखिए nostril से क्या होगा, air will going to enter into the body through the nostril, और nasal cavity में fine hairs होते हैं, okay, fine hair हो गए, that will going to purify and humidify the air, okay। उसके बाद यहाँ पे होता है pharynx, okay, yes, pharynx के बाद आता है यहाँ पे epiglottis, that is the cover of trachea। उसके बाद है larynx, sound box, okay। So yes, this is trachea. Now this is the bronchi, okay, this is the bronchioles and finally the alveoli, ठीक है। तो देखिए कोई भी पार्ट हो, सबका काम होता है कंडक्शन का। नॉस्ट्रल से कंडक्ट हुई एयर इन दी इन दी ट्रेकिया से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में, बट जैसे ही एयर आती है एल्व्यूलाई में, सो दिस इज द साइट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, ठीक है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की साइट, मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एल्व्यूलाई में होता है, ठीक है। अदर आप देखेंगे अदर पार्ट्स जो हैं इसमें सबका फंक्शन है टू कंडक्ट, टू अलाउ द एयर एंटर फ्रॉम देयर टू देयर, ओके, राइट। बट जो यहाँ पे एल्व्यूलाई है उसका मेन फंक्शन होता है दैट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करना, ओके, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, ओके। तो अभी हमने पढ़ लिया है वी हैव डिस्कस द ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, नाउ टाइम फॉर द मैकेनिज्म। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है इसमें दो प्रोसेस हैं, एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन मतलब क्या होता है, दैट द एयर इज टेकन इनसाइड, ठीक है, एयर अंदर गई, ओके, एयर इज इनहेल्ड टेकन इनसाइड, ओके। देन जैसे एयर अंदर जाती है वी नीड टू अकोमोडेट दैट एयर, ठीक है, हमें उस एयर को, जैसे एयर अंदर गई हमें उसके लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट इट कैन फिट इनसाइड, बिकॉज इट लाइक वी हैव इनहेल्ड दैट एयर, ओके। तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी विल गोइंग टू इंक्रीज, ओके, चेस्ट कैविटी बढ़ती है, चेस्ट जो रिब्स हैं ये बाहर की तरफ जाते हैं, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और चेस्ट बाहर की तरफ गए, ओके। सो इट विल गोइंग टू क्रिएट अ स्पेस, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। देखिए आप ऐसे समझिए, सपोज ये है रिब्स एंड दिस इज द डायफ्राम, जैसे एयर अंदर गई ये डायफ्राम बाहर की तरफ, सॉरी ये चेस्ट कैविटी या रिब्स जो हैं ये बाहर की तरफ जाएंगे इन ऑर्डर टू फिट इन मोर एयर, और ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। एंड दिस इज हाउ द एयर एंटर्स इनसाइड द बॉडी, ओके। तो ये हो गया इनहेलेशन। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट विल गोइंग टू मूव डाउन, चेस्ट कैविटी भी एक्सपैंड करेगी, प्रेशर घटेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है और एयर अंदर आ जाएगा, ओके। सो ये है इनहेलेशन का प्रोसेस। एक्सहेलेशन में क्या होता है, एयर को बाहर जाना है तो डायफ्राम रिलैक्स करता है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स रिब्स विल गोइंग टू कम एट देयर ओन प्लेस, जैसे अर्लियर ऐसा कुछ था, ठीक है। अब एयर को बाहर जाना है तो उसके लिए ये जो रिब्स हैं ये अंदर की तरफ आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम भी अब रिलैक्स करेगा, ओके, इट विल गोइंग टू कम लाइक अपवर्ड, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम कम हो गई है, प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया है, सो एयर विल गोइंग टू मूव आउट, ओके। So yes, chest cavity decreases in size, increasing pressure, so air will be pushed out. Okay, ठीक है।
ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैस एक्सचेंज जो कि एल्वियोलाई में होता है. तो देखिए जो बलून लाइक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, दैट इज दिस एल्वियोलाई. ओके, और यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है एंड दे आर टाइनी सैक, सैक्स इन दी लंग्स. ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज. ओके, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है कहाँ से? एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहाँ पे जाता है? एल्वियोलाई में. ओके, सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज अकर्स. ओके, नाउ द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेस्पिरेशन. सो जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हीमोग्लोबिन that is responsible for giving peculiar color or the specific color to these red blood cells. Okay, so red blood cells जो होती हैं, they bind to oxygen molecules into the lungs. हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने का, because it transport oxygen to the tissue where it is released for cellular respiration, and it picks up carbon dioxide from tissues and carries it back to the lungs for exhalation. Okay, so yes, this is the function of the hemoglobin, right? Okay, next we come to the different respiratory volumes. Okay, तो देखिए यहाँ पे ये जो different respiratory volumes हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए. Though very less questions are asked from this, but you should be knowing everything. Okay, we will not going to skip any part. तो यहाँ पे देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मल ब्रीदिंग में, व्हेन वी आर ब्रीदिंग नॉर्मली, व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, ओके, और व्हेन वी आर नॉट रनिंग, जस्ट नॉर्मली वी आर ब्रीदिंग, तो जो अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम. ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल हम इनहेल कर रहे हैं, ओके, और जो हम एडिशनल एयर इनहेल करते हैं आफ्टर दैट नॉर्मल इनहेलेशन, उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द एडिशनल एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड. आपने नॉर्मल एक्सेलेशन किया, उसके बाद जितनी एडिशनल एयर आपने एक्सेल की, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन. ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो आप एक्सहेल कर पाए आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी. ओके, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है कि कुछ रेजिड्यू. ओके, अगर आप मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी करें, मैक्सिमम एयर को बाहर कर दें अपने लंग से, फिर भी जो एयर इट इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम. और क्या सिग्निफिकेंस है? लंग्स का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, लंग्स कोलैप्स ना करे, इसीलिए ये रेजिडुअल वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है कि आप फोर्सफुली भी एक्सहेल करें, फिर भी थोड़ी एयर लंग्स में रह जाए, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं, यू कैन गो थ्रू इट. ओके, वाइटल कैपेसिटी, ओके, सो यस, इट इज ERV, TV प्लस IRV. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, उसी तरह ये देखिए डिफरेंट लंग कैपेसिटी हैं, जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, functional residual capacity, vital capacity, total lung capacity. So you can go through this, okay, and the values are also given. Okay, right? So yes, the values are in ml. Okay, so this is it. Now coming to the last part, that is the different respiratory diseases. तो देखिए इसमें different diseases की अगर हम बात करें तो पहला आ जाता है asthma, ओके, और अस्थमा. सो इसमें क्या होता है कि जो एयरवेज हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है और नैरो हो जाती है. ओके, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई. निमोनिया, इट इज़ द इन्फेक्शन कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स, एयर सैक्स. ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लंग्स. देन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD भी हम इसे कहते हैं. ये एक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है, लाइक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा. ओके, सो यस, हियर वी हैव कंप्लीटेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने ऑर्गन्स पढ़ा, ठीक है, और उनके फंक्शन पढ़े, जिसमें कि एल्वियोलाई का मेन फंक्शन है दैट इट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. ओके, then we have discussed the mechanism,
okay, the inhalation, exhalation कैसे होता है, the different respiratory volumes we have discussed, and finally these diseases or disorders. Okay. So yes, this is the end of the class. I hope this is clear. We have discussed these two systems. So actually the human body is divided into four parts. Like we have divided into four parts. ठीक है, तो आज ये part 1 था. There are 3 more parts left. Okay. तो हर एक part में, like हर एक class में हम दो system को cover करेंगे. Okay. So today we have included these two systems, digestive and respiratory system. Okay. So I hope this is clear. Let's discuss few questions and then we can end the class. In case of any doubt, please feel free to ask your doubt. Okay. चलिए, ये पहला क्वेश्चन है. ट्राई टू आंसर दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन डाइजेशन? यस. Yes, you need to tell me that which of the following enzyme is not involved in protein digestion. Yes, so the correct answer is amylase. देखिए, amylase का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का. ठीक है, it has nothing to do with protein digestion. Next is the hormone that stimulates the secretion of gastric acid, HCl, secretin, gastrin, cholecystokinin or insulin. Yes. करेक्ट आंसर इज गैस्ट्रिन. ठीक है, ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, तो हम इसे गैस्ट्रिन कहते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? सो यस, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? विलाय, रगी, स्फिंक्टर और माइक्रोविलाय. तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाता है, माइक्रोविलाय. ठीक है, माइक्रोविलाय ये प्रेजेंट है कहाँ पे? इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट विल गोइंग टू हेल्प इन द absorption of the absorption of the nutrients. Okay. Next is which of the following is not absorbed in the stomach? Alcohol, water, proteins or certain drug. Stomach में कौन absorb नहीं होता? Protein. ठीक है, right? So if we talk about, see, protein that is broken down. Okay, यहाँ protein is broken down, but अगर यहाँ पे absorption की बात हो रही है तो absorption small intestine में ही होगा. Okay, absorption सिर्फ small intestine में होगा, वो stomach में नहीं होगा. Stomach में only the protein will be broken down into its simpler components. Okay. Then bile produced by liver aids in the digestion of which type of nutrient? Proteins, carbohydrates, fats and nucleic acid. Yes. Bile किसके digestion में help करता है? We have discussed this. Yes, please try. Yes, correct answer is fat. ठीक है, fat का digestion bile भी करता है. Okay, that is the emulsification of fat. Emulsification का मतलब, you know, big fat globule will be broken down into small fat droplets. Okay, right? तो bile और lipase ये किसका digestion करते हैं? Fat का digestion करते हैं. Okay. Next is which part of the digestive system is primarily responsible for water absorption? तो कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर. सो यस, द करेक्ट आंसर इज सी, लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, राइट. सो यहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है. नेक्स्ट इज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ईसोफेगस. यस, मेजॉरिटी जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ पे अब्सॉर्ब होता है? यस, सो द करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन होता है. ओके, न्यूट्रिएंट का. वाटर के अब्सॉर्प्शन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ओके, लैक्टोज को ब्रेक करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? यस, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज lactase. ठीक है, lactase will going to break down this lactose into glucose and galactose. Okay. Next is which of the following structures prevents food from entering the respiratory tract during swallowing? ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रेकिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड ना जाए उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है?
Yes, very good. It is epiglottis. ठीक है. So epiglottis, it is a flap of tissue जो कि glottis को या wind pipe को close करता है, उसकी opening को, when we are swallowing the food. Okay, so that it could be prevented from entering the respiratory tract. Okay. Next is, which of the following is the primary function of the hormone secretin? Secretin का primary function क्या है? It stimulates secretion of HCl in the stomach, stimulates release of bicarbonate from the pancreas, stimulates bile production in the liver, enhances insulin secretion. Yes. Yes, very good. Secretin का काम होता है कि बाइकार्बोनेट को रिलीज करना पैनक्रियास. Okay. All right. Next is, what is the primary site of gas exchange in the respiratory system? Gas exchange की कौन सी site होगी? Bronchi, alveoli, bronchioles और trachea. So we all know this. Yes. It's the alveoli. Very good. ठीक है. तो यहाँ पे ही गैस की exchange होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का. Right? Okay, which muscle is primarily responsible for the process of inhalation? Intercostal muscles, diaphragm, abdominal muscles और pectoral muscles. So कौन सा muscle है जो responsible है inhalation के process के लिए? That is diaphragm. Very good, correct. Okay. So inhalation के process में आप देखते हैं diaphragm it will going to contract. Okay. Exhalation में relax होता है. So it plays a major role. Okay. Then is, what happens to the partial pressure of oxygen in the alveoli during inhalation? Oxygen के partial pressure में क्या change आता है जब हम inhalation करते हैं? Yes, decreases, increases, remains constant or it fluctuates rapidly? Yes, so the correct answer is it increases. देखिए क्या होता है जब हम inhalation करते हैं, okay? So fresh air with higher concentration of oxygen will going to enter the alveoli. तो क्योंकि फ्रेश एयर इनहेल हम कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का हायर है. ओके, तो इसीलिए जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. ओके, सो दिस फैसिलिटेट्स द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड. नेक्स्ट इज, व्हाट ट्रिगर्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सेंटर टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज? ओके, व्हाट ट्रिगर्स दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है एक्सरसाइज के टाइम पे? लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, इंक्रीज्ड ब्लड पीएच और रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स. व्हाट ट्रिगर्स द रेस्पिरेटरी सेंटर so that our breathing rate it increases? Yes, देखिए जैसे ही हाई लेवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, so medulla oblongata, this is actually the part of the nervous system. Okay, we will be discussing that in the nervous system topic. So medulla oblongata जो that is present and it will going to monitor the concentration of carbon dioxide in the blood. जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है, ओके, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, उसकी वजह से ब्लड का पीएच भी डिक्रीज होने लगेगा और इसीलिए हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, सो दैट वी कैन रिमूव और वी कैन एक्सपेल मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी एंड रीस्टोर द बैलेंस. ओके, then during gas exchange, what mechanism allows oxygen to move from alveoli into the bloodstream? gas exchange में कौन सा mechanism है जो oxygen को allow करता है to move out from alveoli into the bloodstream? Active transport, osmosis, simple diffusion or facilitated diffusion? Yes, this is simple diffusion. ठीक है, this is how the the gas exchange occurs. Okay, simple diffusion. Next is, which of the following lung volumes represent the maximum amount of air that can be exhaled after taking the deepest possible breath? Yes, like deepest possible breath means you have inhaled, okay, to your full, and then जो आप maximum amount of air जो exhale करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम vital capacity कहते हैं. Okay, this is known as the vital capacity. Next is, which of the following diseases is characterized by the destruction of alveolar walls resulting in reduced surface area for gas exchange?
yes, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलर वॉल, जिससे कि जो सरफेस एरिया है फॉर द गैशियस एक्सचेंज इज रिड्यूस्ड। कौन सा वो डिजीज होता है, कौन सा डिसऑर्डर होता है? ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, एस्मा और निमोनिया। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर है एम्फाइसेमा। ओके, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? सीलिया का क्या फंक्शन होता है? यस, ट्राई। Produce mucus to trap pathogens, facilitate gas exchange, filter out particular matter from air, move mucus and trapped particles towards the pharynx. Yes, move mucus and trapped particle towards the pharynx. Okay, cilia tiny hair like structures होते हैं और इनका काम होता है mucus को move करना along with the trapped dust and the pathogens. Okay. Then which gas has the highest affinity for hemoglobin, making it dangerous when inhaled in large quantities? Oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide और nitrogen. कौन सी गैस है जिसकी highest affinity है hemoglobin के लिए? Like it will going to it will going to bind quickly with the hemoglobin. कौन सी ऐसी गैस है? Oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide and nitrogen. Yes, so the correct answer is C, carbon monoxide. देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड लाइक हीमोग्लोबिन के सामने अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है, सो इट विल गोइंग टू चूज कार्बन मोनोऑक्साइड ओवर ऑक्सीजन। सो इसका क्या मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ हाई एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो यस, इसका मतलब है इट कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन एंड इट कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं, इट लाइक ऑक्सीजन कैन नॉट रीच टू आवर सेल्स एंड बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इट हैज़ वो किसके साथ बाइंड कर गया है? हीमोग्लोबिन के साथ, एंड इट हैज़ फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो वो हाईली टॉक्सिक है एंड इन दी मोस्ट केसेस देखा गया है, इन दी एक्सट्रीम केसेस इट कैन कॉज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो। ओके, so अगर carbon monoxide it is highly toxic even at low concentrations also, right? Okay, next is what happens during hyperventilation. Increased levels of carbon dioxide in the blood, decreased levels of oxygen in the blood, decreased levels of carbon dioxide in the blood or increased levels of oxygen in the blood. Yes, hyperventilation में क्या होता है? Hyperventilation means decreased level of carbon dioxide in the blood. ठीक है, right? So yes, this is all about the part 1 human body biology for NDA CDS 1 2025. Okay, so I hope you are clear with both the systems that we have discussed today. Okay, so we will be continuing with human body in our classes to come. Okay, but yes, these two parts are very important and make sure okay to study in a proper order. ठीक है, कोई भी सिस्टम पढ़िए, ऑर्गन पढ़िए, उससे रिलेटेड उसके फंक्शन पढ़िए, मैकेनिज्म पढ़िए एंड देन फाइनली दी डिसऑर्डर्स। ओके, राइट? सो दिस इज द सीक्वेंस यू नीड टू फॉलो एंड प्लीज प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 क्वेश्चन फ्रॉम दीज सिस्टम्स टुडे इटसेल्फ, राइट? सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास. Any doubt, anyone? If there is any doubt, you can ask. Yes. Okay, so if there is no more doubt, let's end the class here. Thank you so much everyone for joining in. Jai Hind.